opportunity to deliver the vote of thanks on behalf of all Carmel students. Firstly, I am thankful to my school principal, Sister M. Soni AC, for arranging this orientation program, which mainly focuses on mental stress. I am very grateful to our resource person, Mr. Vineet Sharma and Mr. Vipul Sharma, along with his team. Thank you, sir, for teaching us numerous tricks, which are beneficial in our day-to-day life, and sharing your experience with us. We really learned a lot from you, sir. Lastly, I am thankful to my teacher as well as my friends for their cooperation. Shall we start? Yes, sir. Okay. Let me introduce first. I am Vipul Sharma. Still I am Vipul Sharma, and professionally I am a corporate trainer of New Mindset from Netherlands-based organization Golden Inspiration. Apart from this, I am a nutritionist, and there is a subject called quantum physics, which is used in NASA. I deliver a lecture on that subject, especially for those people who got selected in civil services. But gradually, I realized that I was delivering lecture for those who were already settled in terms of money and career. So to keep this thing in our mind, we started doing something to introduce few products in India, like Neuropath, pineal gland activation, so many products that we have introduced, and we'll discuss all the stuff regarding your studies and all. But before I start the session, I would say we are very, very grateful for school management because they have given chance to speak in front of you all, and we are very, very grateful for you people because you all are sitting here in order to listen me, because if you were not there, whom would we have discussed this concept? So आप लोग बहुत important है, आप लोगों से बात करेंगे, and before I start the session, I would share something very unique regarding my school days when I was in 8th standard, or I don't know, 9th standard. Is there anyone who's sitting from 9th standard who's sitting here? People are here. Oh my God, so many people are there. मजा आएगा आप लोगों से बात करने में, क्योंकि 8th 9th में मेरे बहुत जख्म लगे थे. So to be very honest with you, so as far as teachers are concerned, please otherwise मत लीजिएगा, because मैं मेरा experience share करूँगा. Now time has changed, but before I start anything, I would request Vineet sir to come here to share something unique regarding some activities, and after that we'll discuss everything. we'll discuss. तो मैं विनीत सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आ जाएं और बोर्ड पे एक एक्टिविटी कराएंगे. वो एक्टिविटी के बाद में हम चीज़ करेंगे, बिकॉज टाइम प्रीशियस है. तो गुड मॉर्निंग. एक्टिविटी की जाए. देखिए, हम लोग बहुत कम समय में आपके साथ में 3-4 एक्टिविटी करेंगे. उसके बाद हमें एक क्लास भी आपके साथ में करनी है. तो रेडी हैं आप लोग? बहुत कम समय लूंगा आपका, इसलिए शॉर्ट के अंदर हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे. क्या करना है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी है. आपको पीछे दिखाई दे रहा है या नहीं? तो मैं आप बोलेंगे, मैं यहाँ लिखूंगा. उसके बाद क्या करना है वो आगे देखते हैं. पहले लिखने वाला काम करते हैं. तो एग्जाम्पल के लिए आगे से मुझे कोई भी 2 डिजिट का नंबर बोलिए, कोई भी आप बोलिए. देखिए, इन्होंने बोला 59. देखो, मैंने यहाँ पे 59 लिखा है. ये आपको पीछे तक दिखाई दे रहा है? मतलब इतना बड़ा लिखूंगा तो चलेगा. ठीक है, चलिए. कोई गर्ल्स में से कोई बताइए इधर से. 81. चलिए ठीक है, बताते जाओ. आप बताओ. 65. हाँ जी बोलिए. 41. वेरी गुड. आगे पीछे से 39. 99. 69. चलो आप बताओ. 28. 85. 84. 33. 42. चलिए इधर से पूछते हैं, आप बताइए. 12. वेरी गुड. 12. 54. 82. चलिए आप बीच में से पूछते हैं, आप बताओ. आप बोलिए. बोलिए. नहीं बोलोगे? आप बताओ. 44. 84 लिख दिया ना, कितनी बार लिखेंगे? 87. ठीक है, चलिए मैं पीछे. चलो आप बताओ. 76. आप चलिए. 76. 11. 76. 11. चलिए लास्ट डिजिट और पूछ लेते हैं. देख 33. चलिए हो गया. वेरी गुड. देखिए, जितना शानदार आपने पार्टिसिपेशन किया है उतना ही आगे की एक्टिविटी में हम लोग करेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा
पार्टिसिपेशन करेंगे ना तो हमारे को सुनाई नहीं देगा क्या लिखना है। अभी और एक्टिविटी भी अपने को करनी है, 3 एक्टिविटी हम लोग कराएंगे। मैंने क्यों लिखा है अभी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो विपुल सर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वो करें, फिर हम लोग दोनों आपको साथ में 3 ऐसी एक्टिविटी कराएंगे जो शायद ही आप में से कोई बैठा कर पाएगा, लेकिन कोशिश करिएगा करने का। अगर आप कर पाते हैं तो बहुत जबरदस्त कमाल होने वाला है, नहीं कर पाते हैं तो अभी हम लोग सिखाएंगे। ये डिजिट क्यों लिखी है मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे डिजिट आप सब लोगों को दिखाई दे रही है? आप अपनी बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स के अंदर पेज नंबर होते हैं, वैसे ही होते हैं? तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आपको एक ऐसी टेक्निक हम लोग सिखा दें जिसमें आपको विद पेज नंबर पूरी बुक याद हो जाए और आपसे पूछा जाए कि 28 पेज पे क्या है, 41, 39 पे क्या है, तो सारे के सारे स्टूडेंट आप लोग फेल हो जाओगे ना एग्जाम में? फेल हो जाएंगे? यस सर। तो इतना कंफ्यूजन कैसे, यस कैसे बोले आप? यस सर फेल हो जाएंगे, पास हो जाओगे सारे? तो अभी मैडम जो बता रहे थे आपको डर लग रहा है क्या होगा, नंबर कितने आएंगे नहीं आएंगे, फिर नंबर की चिंता नहीं रहेगी, कोई आपको टेंशन रहने वाला है? नहीं रहने वाला। तो सीखना चाहते हैं इसी टेक्निक कि आपको विद पेज नंबर पूरी बुक याद आ जाए कि अगर आपके पेरेंट्स या टीचर पूछे पेज नंबर 43 पे क्या है, उस पे जो समरी दिया जिस दिया गया वो आप तुरंत बताने में कैपेबल हो जाए। चाहते हैं ऐसा सीखना? कितने स्टूडेंट चाहते हैं? हैंड रेज करके बताइए। सारे चाहते हैं तो मैं विपुल सर इससे रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी आपको ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताने वाले हैं, फिर हम लोग सारे लोग अभी सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज विपुल सर इसको यहाँ लगो, है ना, इसको वहाँ लगा देना ना। चलो शुरू करते हैं। कई होगा तो चेहरे उतरे हुए, तो मैं बताता हूँ क्यों उतरे हुए होंगे। सी मैं व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड आई टेल यू, वहीं से शुरू करेंगे। विल डिस्कस, बहुत यूनिक होने वाला है आज आपसे जो बात करेंगे। मैं क्या 7th 8th का, बिकॉज बहुत टाइम हो गया अभी स्कूलिंग किया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मुझे लाइक है आइडिया 8th 9th का। तो 8th 9th में क्या होता था, जैसे लाइक वी केम हियर, हम लोग यहाँ आए थे आप लोगों से, वी आर हियर टू डिस्कस समथिंग यूनिक रिगार्डिंग योर स्टडीज एंड ऑल। तो आर स्कूल मैनेजमेंट दे यूज्ड टू इनवाइट पीपल लाइक वी हैव कम हियर। हमारे मैनेजमेंट भी बुलाते थे, एंड हमारे टाइम में वो जादूगर टाइप लोग आते थे, ठीक है, वो कुछ ना कुछ लाइक बता रहे हैं, बट होता था वो मॉर्निंग आवर्स में प्रेयर के टाइम में। आप लोगों में भी प्रेयर होती होगी, है ना? तो वो आधा पौने घंटे का जो प्रेयर टाइम होता था उसमें स्कूल वाले किसी को बुला लेते हैं। एंड द मोमेंट हमारे वो स्पोर्ट्स के जो टीचर होते हैं ना, पीटीआई सर, यहाँ पे भी कल्चर है क्या पीटीआई वाला? प्लीज अदरवाइज मत लेना भाई, मैं जो बोलूंगा। लाइक है ना, हमारे पीटीआई सर यूँ कहते हैं सारे नीचे बैठ जाओ। लाइक प्रेयर में सारे बच्चे खड़े हुए हैं, 1000-1200 जो भी बच्चे खड़े होते थे, सारों को सारे नीचे बैठ जाओ। और जिस पॉइंट पे, क्योंकि कोई काला पीला ड्रेस पहने हुए आया खड़ा रहता, टीम वे मैन ऑल, और जैसे ही वो ये बात बोलते सारे नीचे बैठ जाओ, मेरे दिल से एक ही बात निकलती थी, थैंक गॉड शुरू के 2 पीरियड निकले। क्यों? क्योंकि मुझे 2 पीरियड, पहले तो मैं होमवर्क पूरा नहीं करता था, ये प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, और दूसरा मुझे 2 सब्जेक्ट दुनिया के सबसे गंदे लगते थे। पहला मैथमेटिक्स, ठीक है ना। अच्छा, अभी आप लोग 10th में आओगे तब एक नया चैप्टर है, उसके दर्शन होंगे आप लोगों को, ट्रिग्नोमेट्री, उसका आ गया क्या? नहीं आया? मतलब मेरे को तो लगता था ये पैदा ही क्यों है सब्जेक्ट इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि होता ये था कि LHS बराबर RHS, अरे काय का LHS RHS, मतलब A स्क्वायर B स्क्वायर A प्लस B A माइनस B, मेरे से होता ही नहीं था अलजेब्रा एंड ऑल। एंड सेकेंड, अब जो होता नहीं था तो कॉपी बना के क्या फायदा, होना तो वैसे भी नहीं है। अच्छा एक और बात, दुनिया का ये तो प्रॉब्लम देता ही था, मैं चाहे LHS बराबर RHS करूँ, चाहे RHS बराबर LHS करूँ, मैथमेटिक्स में मेरी 12 बजी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बेकार लगता था, इसलिए कॉपी भी नहीं बनाता था। दुनिया का दूसरा सबसे गंदा सब्जेक्ट SST, सोशल साइंस। अच्छा बताता हूँ क्यों। अच्छा अभी ये एक तो मेरी जान ले रखी थी इस, मैं ईमानदारी से बताता हूँ आपको, क्योंकि कई चैप्टर्स आते थे। एक तो मुझे परेशान कर रखा था वो लुइस ने, मतलब लुइस 16, मतलब मेरे को ये होता था कि क्या है यार, ले दे के घूम फिर के फ्रेंच रेवोल्यूशन चालू हो जाता है, या इंडिया वाला पार नहीं पड़ रहा वो, मतलब वो याद नहीं होता था। इतने लंबे लंबे आंसर्स लिए ही बैठे रहो, वो याद ही नहीं होते हैं। तो 10th में आते आते लाइक आई यूज थिंक कि मैं ना भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता था, इसलिए नहीं कि मुझे देश का उत्थान करना है, सिंगल पॉइंट था कि जिस दिन देश का प्रधानमंत्री बनाना, इन 2 सब्जेक्टों को इस देश से निकालूंगा। तो मैं अकेला तो हूं नहीं, मेरे जैसे कई हैं, नहीं दुनिया चपटी गोल होती होगी, बाबर भारत क्यों है, मुझे क्या करना लेकिन ये आई वॉज लाइक दैट, इसलिए मैंने, अच्छा कईयों के स्माइलिंग फेस और कईयों तो मुझे लगता है मेरी बिरादरी कैंसरों के साथ होता दिखता है, कॉमन है,
बट आई वुड आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर स्टडीज. इफ यू रिलेट विद देम जस्ट रेज योर हैंड. आप अपने हाथ खड़े करना अगर रिलेट करो, बिकॉज आप हंस रहे हो तो प्रोबेबली सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी आई वुड आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस. इफ यू रिलेट, अगर रिलेट करो तो हाथ खड़े करना. द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोना आस्क यू, कितने बच्चे ऐसे हैं दोज हु आर सिटिंग हियर एंड दे आर फेसिंग द चैलेंजेस, पढ़ते तो बहुत है, कमबख्त किताब याद नहीं होती. इज देयर एनीवन? अरे यार, पहले क्वेश्चन पे ही छक्का. चलो कोई ना, मैं आगे क्या बात करूं. ओके, द सेकंड क्वेश्चन आई वुड आस्क. अच्छा चलो, हो सकता है एक आध कोई हीरा होगा यहाँ पे. नहीं नहीं, मेरे को सब याद हो जाता है, राइट. तो उसको रहने थे, वो इंटेलिजेंट कम्युनिटी में तो छेड़ता ही नहीं था, ठीक है. अच्छा दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इज देयर एनीवन who is facing the challenges like पढ़ते भी है, suppose you have gone through all the stuff in your books and all, सब कुछ याद कर लिया by heart, but when it comes to your exam just 2 or 3 days before you feel like that, अरे पहले बोलने तो दो. ठीक, ये ऐसा फील होता हो, हे भगवान मैंने तो सब याद किया था, अरे यार याद ही ना रहा, क्या फिर करके देखता हूं, अरे यही तो था, अरे मैं भूल गई. होता है ना. ओके, अच्छा एक और, आई विल चेंज द क्वेश्चन, इट वुड हेल्प, इट वुड रिलेट. तीसरा क्वेश्चन यूजुअली कम होता है, शर्म के कारण बच्चे हाथ खड़े नहीं करते, बट अगर आप रिलेट करो तो हाथ खड़े करना. मतलब कई तो जैसे मान लो एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले, 3 दिन पहले कईयों के साथ एक चमत्कार होता है, मिरेकल. पेट दर्द होना, तबीयत खराब होना, हाथ में पसीना आना, बुखार हो जाना. मैं तो क्लास में देखता था कई तकड़ लुढ़क जाती थी. मैं ये देखता था कि ये जानबूझ के किया है इसने, तो मैं भी ये टेक्निक अपनाऊं यार. और यार जेन्युइन है. बट द थिंग इज, मेरे स्वेट बहुत आता हाथ में, मेरे पसीना बहुत आता था एग्जाम टाइम में. यूजुअली अगर किसी के साथ होता है ऐसा रिलेटेड कुछ भी एग्जाम के पहले फील करते हो, हाथ खड़े करना, हमारे पास सॉल्यूशन है. मुझे लगा 1-2 है तो सारे मेरे जैसे हैं. चलो ठीक है, होता है, ये हैपन, सबके साथ होता है. अच्छा ये सब होता है ना, तो पक्की बात है 2 क्वेश्चन रामबाण है, लगेंगे ही रंगे. ऐसा कभी हुआ क्या, लाइक सपोज यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, द क्वेश्चन पेपर इज इन फ्रंट ऑफ यू, at the time of answering the question you feel like that आधा याद है आधा. कैसा लगा, समझ में आ रहा है? तो कोई मुझे कंसेप्ट का नाम बताएगा? विपुल सर ने कौन कौन से कंसेप्ट बताए? न्यूरोपाथ और अच्छा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, वेरी गुड. और न्यूरोपाथ और पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा. आप अटेंटिव होकर सुन रहे हैं चीज़ों को. अभी हम लोग इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेते हैं ताकि कुछ चीज़ों के बारे में आपको आइडिया लगेगा. उसके बाद में हम 2-3 एक्टिविटी और करने वाले हैं. समय कम है इसलिए चीज़ जल्दी से समअप करते हैं. आपके सामने डिजिट दिखाई दे रही है. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये 59 से लगा के 33 तक जो डिजिट लिखा हुआ है, इसे आप एज इट इज याद कर दीजिए, लेकिन टाइम लिमिट आपके पास में 1 मिनट है. 1 मिनट में आपको ये बाय हार्ट हो जानी चाहिए. ऊपर आगे पीछे कैसे भी आपसे सुना जाए तो आप सुना दें. 59 से लगा के 33 तक. तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसे 1 मिनट में बाय हार्ट कर देंगे, जो बहुत कॉन्फिडेंट है कि 1 मिनट बस. लेकिन हम लोग पिछले 12 साल से करते आ रहे हैं. जब हम स्टूडेंट से पूछते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट ये कहते हैं सर 1 मिनट तो इसे पढ़ने में लगेगा हमें, फिर हम लोग इसे वर्बलाइज करेंगे, मन में मेमोराइज करेंगे, दिमाग लगाएंगे तो हमें टाइम लग जाएगा. शायद ऐसा ही कुछ यहाँ होने वाला है. 1 मिनट में नहीं है ना पॉसिबल? मैं करके दिखाऊं? तो आप लोगों से मेरे को एक रिक्वेस्ट चाहिए कि आप में से कोई भी एक स्टूडेंट यहाँ पे मैं बुलाऊंगा, वो सिर्फ मुझे डिजिट बोल के सुनाएंगे, मैं सिर्फ सुनूंगा. जितना टाइम वो बोलने में लगाएंगे उतना ही टाइम मैं याद करने में लगाऊंगा. तो उनमें से कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक जना आ सकता है. उन्हें मैं सिर्फ माइक दूंगा, ये लगा ले और मुझे बोल के सुना दे डिजिट. आप में से कोई भी एक जना आ जाए ताकि हम जल्द से जल्द करेंगे. कोई भी एक जना आ जाओ, आप आ जाओ, बढ़िया आप आ जाओ, कोई बात नहीं. इनको माइक दे देते हैं. आप ये माइक ले लो. क्या नाम है आपका? यशी. तो यशी इस माइक को ऐसे करके लगा लीजिए. ये ले लो, यहाँ पे आ जाओ. देखो अभी आपको क्या करना है यशी, आप मेरे को डिजिट बोल के बताएंगे, ठीक है? आपने जैसे फर्स्ट डिजिट बोला 59, जब मैं आपको बोलूं सेकंड तब आप सेकंड बोलेंगे. मैं बोलता जाऊंगा सेकंड, आप मुझे बोलते जाएंगे, ठीक है? तो मैं सुनता जाऊंगा. आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप भी ट्राई करो याद करने का. जितना टाइम ये बोलेंगे उतने टाइम में आप भी याद करने की कोशिश करिएगा. देखते हैं याद होता है या नहीं, लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा. एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज साइलेंट रहना एकदम, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फोकस करूंगा. बहुत कम समय में इतनी चीज याद करनी है तो थोड़ा फोकस करना पड़ेगा ना, इसलिए आप थोड़ा शांत रहिएगा. तो अपन स्टार्ट करते हैं. जैसे आप मुझे फर्स्ट डिजिट मैं जब बोलूँ तो बताइएगा. आप थोड़ा सा साइलेंस रखिएगा. चलिए फर्स्ट डिजिट बताइए. 59 सेकंड. 81 89 सेकंड. 81
हाँ जी, First 59, second 81, अच्छा 59, 81, 65, 65, 41, 41, 39, आप लाउड बोलो, घबराओ मत एकदम, तेज बोलना है आपको, जितना तेज बोलोगे उतना जल्दी मैं याद करूंगा। 39 सेकंड, 99, 99 और तेज बोल सकते हो तो बोलिएगा। 39 आगे क्या बोला? 99 आगे 69, 69 ठीक है, 28, 28 ठीक है, 85, 85 ठीक है, 84, 84 ओके, 33, 33 ओके, बोलते जाइए। 33 आपने बताया, आगे 42, 42 ओके, 12, 12 ओके, 54, 54 ठीक है जी, 82, 82 ठीक है, 44, 44 ओके, 87, 87 ओके, 76, 76 ओके, 11, 11 ओके 33, ओके, 33 नेक्स्ट, खत्म। खलास खत्म। चलिए ठीक है, तो अभी आपको भी याद हो गया होगा, याद हो गया सबको? नहीं हुआ? मैं सुनाऊं? यस, आपका काम है, चौक ले लो और आप सिर्फ टिक लगाएंगे, ठीक है? सिर्फ टिक लगाने का काम करिएगा ताकि देखते हैं याद हुआ या नहीं हुआ। टिक लगाने का काम करिएगा, टिक लगाने का काम करेंगे। एक रिक्वेस्ट और कर लेता हूं, वैसे टू एरर इज ह्यूमन, इंसान से गलती हो सकती है पर नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर गलती रहे तो आप बीच में मत टोकिएगा, ये गलत है, लास्ट में देख लेंगे कोई गलत रहती है या नहीं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। और ये मैं ऐसा क्यों करके बता रहा हूँ अभी हम लास्ट में बताएंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। 59 81 65 41 39 99 69 28 85 84 33 42, धीरे चलूं, 42 12 54 82 44 87 76 11 33, खत्म। चलिए थैंक यू वेरी मच। कितने स्टूडेंट हैं जो मुझे बताएंगे इनमें से कोई डिजिट ऐसी जो गलत रह गई हो या छूट गई हो? नहीं, सारी डिजिट राइट थी? सब सारी कुछ, कोई गलत रहा? कितने स्टूडेंट है जो जाते हैं इतनी तेज मेमोरी हो जाए कि हमें भी याद हो जाए? मैंने एक बार भी इनको ऐसा बोला कि मुझे वापस बताओ क्या था, अरे अरे वो रह गया, 43 रह गया, 64 रह गया, 39 रह गया, ऐसा कुछ बोला? एक बार में सुनते ही दिमाग में बैठ गई। सारे लोग सीखना चाहते हैं, जैसे मुझे डिजिट याद हो गई वैसे ही अगर इस डिजिट के ऊपर अगर कोई कंटेंट होता तो वो भी हम याद कर लेते हैं। इसीलिए मैंने आपको एक एग्जांपल देकर बताया कि ऐसे याद किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि ये डिजिट इतनी हो, इससे भी ज्यादा होती तो भी मैं करके दिखाता आपको, तो भी किया जा सकता है, लेकिन उस पर क्या कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट है याद करना। लेकिन मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। वॉट गोज अप व्हेन रेन कम्स डाउन, मतलब जब बारिश होती है तो ऊपर क्या जाता है? फिर हाथ ऊपर कर, टाइम मिलेगा 10 सेकेंड, ठीक है। रूल्स कोई भी नहीं तोड़ेगा। सर टाइम। ठीक है, हाँ बताओ। वाटर वेपर, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां नहीं होनी चाहिए, आंसर नहीं है।